और स्क्रीन भी शेयर करो। Is my screen visible to you all? एकदम भैया। हाँ भैया दिख रहा है। Visible Yes, भैया। yes. Okay. So we're going to discuss about the enforceability of contracts, how contracts are valid, void, avoidable, and void. So these three are arranged in descending order of their enforceability. Purely valid contracts, which are not voidable, are the most enforceable contracts. That there's no question as to their enforceability. And voidable are, let's say, a gray area. They are enforceable, but they are enforceable at the option of one party. And void agreements, not contracts, are not enforceable at all. So we discussed the elements of a contract in the last class. And valid contracts are simply perfectly legal contracts which satisfy the elements contained in Section 2 of the Indian Contract. These elements are offer and acceptance, free consent of the parties, consideration, valid contract, lawful object, competent parties, intention to create legal obligations. All of this we discussed in the last class. And if the contract is enforceable by law, it is said to be a valid contract. This is a very easy definition of valid contracts, and valid contracts are simple in that sense. What are complicated are voidable and void contracts. So we're going to be discussing more about these two types of contracts. So moving on to voidable contracts, these contracts are defined in Section 2I of the Indian Contract Act. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. This means that these are enforceable by law. But you might ask that, okay, valid contracts are also enforceable by law. That's the very definition. Then what's the need to create a specific name for this? Can anyone read the first point and not read, just explain why there's a specific need to have this definition of voidable contracts? सवाल समझ में आया ना आपको कि यहाँ पे लिखा है कि एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये लिखा है, और वैलिड में भी एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आप इसके लिए स्पेसिफिक चीज क्यों ला रहे हो, क्या है? भैया कैन आई एक्सप्लेन? हाँ, एक्सप्लेन। Bhaiya, the voidable contracts are needed because when one party is deceived, they should be allowed to decide if they want to continue the contract or dissolve it. Okay. So you're saying as a compensation. The ability to make this contract valid or not depends solely on one party. कि इस पार्टी के ऊपर है अभी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेगा या नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए ये लिखा है एट द ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करना ही करना है। यहाँ पे आपको क्या है कि एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए एग्जांपल दिया गया है कि सपोज अ पर्सन अग्रीज टू पे अ सम ऑफ रुपीज, कितना ये कॉमा गलत डाल दिया है। हाँ, sorry, I'm very pedantic with respect to these things. So suppose a person A agrees to pay a sum of rupees 1 lakh to a person B for an antique chair. This contract would be valid. The only problem is that person B is a minor and can't legally enter a contract. So this contract is a valid contract from the point of view of A, क्योंकि A तो बिल्कुल ही लीगल काम कर रहा है। Yes, स्वाति, आपने हैंड रेज किया। हाँ भैया, तो ये वॉइडेबल कैसे है? क्योंकि माइनर के साथ है तो वो तो वॉइड ऑफ इनिशियो ना हो जाएगा, ये तो वॉइडेबल नहीं होना चाहिए। वॉइडेबल है क्योंकि जब माइनर मेजॉरिटी में चले जाएगा, वो 18 प्लस हो जाएगा,
उसके पास ये ऑप्शन होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मतलब वैलिड करने के लिए या नहीं, ठीक है। वो कह सकता है कि ये जितने भी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल ही मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने वाला हूँ। तो ये ऑप्शन किसके पास है? माइनर के पास है ना। जो मेजर पार्टी है इस कॉन्ट्रैक्ट का उसके पास तो नहीं है। तो जिसके पास ऑप्शन है उसके लिए वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड ab initio नहीं होता ये। वॉइड ab initio हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे टाइप की कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड ab initio होते हैं। इज दैट करेक्ट? ओके भैया। आपको समझा ना कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कि मैं आ रहा था उस पॉइंट पे कि so this contract is a valid contract from the point of view of A and a voidable contract from the point of view of B. As and when B becomes a major, he may or may not agree to the terms. This is a voidable contract. कि जब वो मेजर हो जाएगा तब उसके पास ये ऑप्शन होगा कि इसको इस कॉन्ट्रैक्ट में रहना है या नहीं रहना। जब वो माइनर था तब तो वो सरासर मना भी कर सकता था और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इसको एनफोर्स कराने के लिए ए के पास। पर जब वो मेजर हो जाएगा अब उसके पास उस पॉइंट पे ये ऑप्शन होगा कि क्या मैं इसको वैलिड करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। तो ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कि एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है उस चीज को ऑनर करने के लिए या नहीं ऑनर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब समझाओ कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी है और वैलिड भी है, कैसे हो सकता है? आप पढ़ते हो लॉजिकल आपने सिलोजिज्म पढ़ा होगा, तो उस वे में हाँ मुत्तकिक बताओ। वॉइडेबल है लेकिन एक पार्टी के ऑप्शन पे, अगर वो चाहे तो वॉइडेबल है वरना उससे पहले वो वैलिड है। करेक्ट करेक्ट। तो सबसेट कौन सा हुआ इसमें? सबसेट यानी छोटा सेट। जैसे सिलोजिज्म में आप पढ़ते हो कि एक बड़ा सर्कल होता है उसके नीचे एक छोटा सर्कल होता है, तो बड़ा सर्कल कौन सा है और छोटा सर्कल कौन सा है? भैया छोटा सर्कल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बड़ा सर्कल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो इससे आप इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? भैया every voidable contract is a valid contract, but every valid contract is not a Not a- voidable contract. परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में ये डिस्टिंक्शन और ये सिमिलैरिटी, ठीक है। In a voidable contract, at least one of the parties has to be bound by the terms of the contract. ये necessary condition है। दोनों के लिए voidable नहीं हो सकता, एक पार्टी के लिए voidable हो सकता है। दोनों पार्टी के लिए voidable होगा तो वो एक नॉर्मल अग्रीमेंट होगा जो कि एनफोर्स हो सकता है नहीं हो सकता है, ये तब फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं ला सकता। तो ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए इन द अबव एग्जाम्पल, इसके पास है मतलब वो बाउंड है कॉन्ट्रैक्ट से जब वो मेजर हो जाएगा, बट जो बी है उसके पास ये डिस्क्रेशन है कि ये एंटर करना चाहता है या नहीं करना चाहता इस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कंडीशंस है जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाते हैं, ये हमने एक एग्जांपल में माइनॉरिटी डिस्कस की कि लीगल कैपेसिटी, one party's legal incapacity to enter into a contract. Example of minor. This we discussed. But the rest we are yet to discuss. The first one we will discuss is failure by one or both parties to disclose a material fact. Now, okay, failure one or both parties to disclose a material fact. Is this both parties applicable here? That is debatable. This is debatable whether both parties can be allowed to fail to disclose a material fact and still have this contract to be voidable. So can someone explain material fact kya hai? Where can I explain? Explain. We have a fact which is essential to the very essence of the contract.
ओके मीन्स अगर जिस चीज की बात हो रही है उसका एक बहुत ही मेजर फैक्टर इन्वॉल्व है। जैसे अगर किसी कार की सेल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस कार का मतलब उस कार का जो मॉडल नंबर है या कार के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं वो एक मेजर फैक्ट है। अगर वो नहीं होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, तो ओके। वो एक मटेरियल फैक्ट बन जाता है। तो इस मटेरियल फैक्ट जरूरी है दोनों पार्टीज को पता होने के लिए, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो, कि एक रीजन डिसीजन ले सके दोनों पार्टीज। और फेलियर बाय वन और बोथ पार्टीज यहाँ पे लिखा है, बोथ पार्टीज है या नहीं वील डिस्कस आगे। तो अगर एक पार्टी ये कह दे कि कोई कोई फैक्ट हाइड कर दे, तो फिर दूसरे पार्टी के पास ये हक होता है कि क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करेगा या नहीं करेगा, ये उसके डिस्क्रेशन के ऊपर है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी ने डिस्क्लोज नहीं किया उसके ऊपर एक ऑनरस कंडीशन होना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी को वो चीज डिस्क्लोज नहीं हुई, वो अपने आप पे वो अपनी डिस्क्रेशन लगा के, अभी नया जब इंफॉर्मेशन सामने आ गया, अब उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं इस चीज को एनफोर्स करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, जो कि वैलिड है। क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में लोग डिसीव हो जाते हैं इस चीज को लेके। तो कानून ने स्पेसिफिकली इस चीज को लाया है कि अगर फेलियर बाय वन पार्टी होगा, कुछ मटेरियल फैक्ट जो कि जरूरी है, ऐसे नहीं कि कोई एंसिलरी फैक्ट कोई ले आए कि इस पेंटर की माँ का नाम क्या है जो आपने पेंटिंग किया है, ये मटेरियल फैक्ट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इससे कुछ रिलेशन नहीं है। तो इसलिए सरकार ने ये कानून लाया है कि हमको ये एबिलिटी देनी चाहिए जिस उस पार्टी को, कि वो अभी डिसाइड करे कि हमको एनफोर्स करना है या नहीं करना। तो अब है मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ये तीनों बहुत ही डिस्टिंक्ट चीजें हैं, और हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडियाज आपके क्या है मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के, ये आप बता दो। क्या वो सही है या गलत है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पर ये जान लो कि इन चीजों से वॉइडेबल हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या है मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड? किसी को कोई आइडिया नहीं है तो मैं ठीक, बताऊं भैया? हाँ बता दो। भैया मिस्टेक होती है जब मैं किसी फैक्ट को सही मानता हूँ और लेकिन मेरे को पता नहीं है कि वो फॉल्स होता है, और मैं जो जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसे फैक्ट बता देता हूँ और वो भी इसमें बिलीव कर लेता है, तो ये मिस्टेक है। मतलब मेरे पीछे कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं था, मेरे को भी वो चीज़ सही लगती थी इसलिए ही मैंने बोला, तो ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो जिस जिस चीज को हम कॉमन पैरेंस में ऑनेस्ट मिस्टेक बोलते हैं, वही ना, कि ओ दिस वाज माय ऑनेस्ट मिस्टेक, कि यस भैया। हाँ। और अब मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका इतना क्लियर आइडिया नहीं है भैया। गुड, ठीक है, आप एडमिट कर रहे हो कि नहीं। गुड। और फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता है भैया जब मैलिशियस इंटेंशन इंटेंट होता है हो। डिसीव करने का। ओके, ठीक है, ठीक है। um, ये इस चीज के बारे में एक और लेक्चर होगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इन तीनों के बारे में डिस्टिंक्शन और इनके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस और ड्यूरेस, ये भी एक अपने आप में लेक्चर है, जिसमें हम समझेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है और ड्यूरेस होता है तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। और कोअर्जन भी इस चीज में इन्वॉल्व होता है, कि आप एक पार्टी को अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, चाहे वो कैसे भी प्रकार का हो, वो क्या आप उस चीज के द्वारा आप किसी को इंड्यूस करते हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो जो पार्टी इंड्यूस हुई है वो पार्टी ये क्लेम कर सकती है कि ये अनडू इन्फ्लुएंस था, तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करूंगा। बट ये वैसे भी ऑनर हो सकता है अगर वो पार्टी कहे कि नहीं, ये था अनड्यू इन्फ्लुएंस, लेकिन मैं इस चीज को ऑनर करूंगा, क्योंकि कोई बेनिफिट होगा उसको जो कन्फर हो रहा होगा, तो नेट गेन होता होगा उस कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट के थ्रू, तो वो अग्री करता होगा कि मैं करूंगा ये, और लॉ उसको रोक नहीं सकता इस चीज को करने के लिए। फिर इसके बाद है वन पार्टी इज इनकैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल माइनर, दिस वी डिस्कस्ड
through the example. One or more terms that are unconscionable. What is unconscionable? This is a vocabulary class. भैया टर्म्स जो एम्बिगुअस होते हैं. That is not exactly what unconscionable means. Someone else, can you try? Inappropriate. Good. You're on the right track. Can you explain more? कि inappropriate contractual sense में कैसे हो सकता है? So, which are not It's okay. Yeah, I can try one. हाँ, try. भैया inappropriate means in the sense of contract means मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन भैया कॉन्ट्रैक्ट को लेके या कोई झूठ इंफॉर्मेशन तो इस चीज में आ गया. अ मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं. ये कुछ अलग चीज है, क्योंकि ये जो फॉल्स और ये सारी चीजें सेकंड पॉइंट के द्वारा कवर हो गई. अनकॉन्शनेबल का कुछ अलग मतलब होता है. और इसके पहले किसी ने बोला, क्या बोला था आपने? इनअप्रोप्रिएट बोला था. ये राइट ट्रैक है. ये परफेक्ट जवाब नहीं है, लेकिन ये राइट ट्रैक है. हाँ, कौन कह रहे थे भैया अनकॉन्शियसनेस. हेलो भैया. हाँ, बताइए. हाँ भैया, इसमें अनकंसीडरेबल मींस होता है कि मेंटल स्टेटस से रिलेटेड. दोस हु हैव नॉट राइट मेंटल स्टेट, वो अनसाउंड माइंड हो गया. वो वन पार्टीज लीगल इनकैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा. ये अलग चीज है. भैया अगेंस्ट पब्लिक गुड. वो अलग चीज है. आप एक बार मैं आपको एक टास्क देता हूँ. आप अपने फोन पे या लैपटॉप पे अनकॉन्शनेबल का मतलब गूगल पे देखो और फिर मेरे को बताओ. भैया अनफेयर. Unfair is on the right track also, but let the others read on Google, and जब हो जाए तो आप बता देना फिर से कि आपने पढ़ लिया. और कोई पढ़ भी देना गूगल पे क्या लिखा है. नॉट राइट और रीजनेबल. Not right or reasonable. ठीक है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में समझाओ. चैट बॉक्स पे कुछ आया है. अनएथिकल, कैन बी नॉट, मतलब that's also on the right track. हाँ? which cannot be performed. नहीं, वो अलग Terms चीज है. वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता. बट अनकॉन्शनेबल ये है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जब कोई टर्म मैनिफेस्टली एक पार्टी को अंडर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जब बहुत ही लो लेवल पे एक पार्टी को डाल देता है विद रिस्पेक्ट टू द पावर डायनामिक्स ऑफ द टू पार्टीज. जब एक पार्टी के पास बहुत ज्यादा पावर है किस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन और वो उस चीज का गलत फायदा उठाते हुए ऐसा एक टर्म डालता है जो कि बहुत ही अनरीजनेबल है, जो कि एक दूसरे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, तब उस चीज को अनकॉन्शनेबल कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही दूसरे पार्टी को दबा रहा है. अनड्यू इन्फ्लुएंस से थोड़ा रिलेशन है इसका. जब कोई टर्म बहुत ही ज्यादा आपको डिसएडवांटेज कॉज कराता है, और यूजुअली ये डिसएडवांटेज तब होता है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ लेवरेज. लेवरेज समझते हो आप? सूट्स देखा होगा आपने. लेवरेज बहुत यूज करते हैं आप. जब एक पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है और वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन का फायदा उठाते हुए कुछ ऐसा कार्य करवाता है दूसरे पार्टी से जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से डिग्रेडिंग है. डिग्रेडिंग टर्म्स आर अनकॉन्शनेबल. ये you can't imagine them in a just society. So what someone said unethical, that is related to this, what Monica said.
this is related to that. So we will be discussing this also. Last is a breach of contract. This is self-explanatory. Like breach का मतलब क्या है और इसका क्या relation है, ये भी आप कोई try कर सकते हैं. Breach of contract. Not following the rules. Okay. So breaking the agreement or hello. Was someone trying right now to speak? भैया breaking the agreement Yeah. or a law or a, Not law. That'll be different. You're right. When you're breaking the agreement, when you're breaking the contract that was let down, that was entered into, then the party whose rights were not delivered to them, or the party that was at a disadvantage because of the other party's actions, which did not live up to the contractual expectations. In that case, that party can say that, look, we had agreed for this, but you are not doing this, so we're not going to honor this contract. So वो ऑप्शन है उस पार्टी के पास, या तो वो वैसे कर सकता है, कह सकता है कि हमको ऑनर नहीं करना इस कॉन्ट्रैक्ट को और इसके लिए हमको डैमेजेस दो. वो अलग एक सूट फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट में, कह के कि ये हमको लॉस हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल ना होने से, तो आप इस चीज को पैसों के द्वारा हमको कॉम्पेंसेट करो. या फिर वो कह सकता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, किसी को पता? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भैया जैसे डैमेजेस में ऑलरेडी डिसाइड होता है ना कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को लिव अप नहीं कर पाए तो आप जैसे अगर किसी के घर की सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर आप अपने घर का पेमेंट नहीं दे पाए तो आप हमें घर की ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे, तो ये स्पेसिफिक एक्शन हो गया. ओके, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करवा रहे हो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, तो आप इस चीज को वॉइड नहीं कर रहे हो, आप इसको वैलिड करवा रहे हो कोर्ट के एक्शन से. आप अपने प्लेंट में लिख रहे हो कि इसने सेल का हमको प्रॉमिस किया था, हमने पैसे दे दिए, लेकिन वो हमको घर की ओनरशिप नहीं दे रहा, तो आप उससे दिलवा रहे हो ओनरशिप. इस केस में क्या हो रहा है, जब ये वॉइडेबल हो जाता है, वो आप कह रहे हो कोर्ट से कि इसने हमको घर नहीं दिया, तो आप इससे कुछ जितना भी हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पैसे दिए थे वो हमको वापस करवाओ, और जिस पोजीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के पहले थे उस पोजीशन पर ले आओ. ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बीच में. ये आपके टॉर्ट्स से भी थोड़ा रिलेटेड, डैमेजेस टॉर्ट्स में होते हैं. भैया एक बार रिपीट कर दो. अच्छा, आपको क्या समझ में नहीं आया? भैया डैमेजेस से डिफरेंट कैसे है वो? हाँ, मैं बताता हूँ. डैमेजेस में क्या होता है, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉस हुआ उसका, सपोज चित्रांशित ने शायद एग्जांपल दिया था कि घर का सेल हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि हम आपको घर का ओनरशिप दे देंगे, आप हमको पैसे दे दो. पैसे देने वाली पार्टी ने पैसे दे दिए, लेकिन ओरिजिनल ओनर ने घर वापस नहीं दिया. तो इस केस में क्या हो सकता है, या तो ये पार्टी ये कर सकता है, फर्स्ट चीज ये कर सकता है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है, बोलता है कि हमारे पैसे वापस करो. ठीक है, ये जो है ये कॉम्पेंसेटरी रेमेडी है जिसमें वो वापस ले रहा है पैसे, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करवा रहा. सेकंड केस में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि इसको फोर्स करो कि ये हमको ओनरशिप दे एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो स्पेसिफिक चीज के लिए अग्रीड थे हम, वो आप उससे करवा रहे हैं. समझ गए आप अभी? हाँ, थैंक यू. ठीक है. तो ये वॉइडेबल के कंडीशंस थे. इसके बाद हम जाते हैं वॉइड. ये मैंने जानबूझ के काटा मारा, बताओ क्यों? ये गलती नहीं है, ये मैंने जानबूझ के काटा.
भैया बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो ही नहीं सकता, मीन्स अगर वो वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता शायद। एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट बाय डेफिनेशन वैलिड होते हैं, वैलिड या वॉइडेबल जो उसका सबसेट है वो होते हैं। जो वॉइड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है। और हमने पहले पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस एग्रीमेंट्स दैट आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ यू आर सेइंग इट इज नॉट enforceable, so how can it be a contract in the first place? And this is a very basic mistake that even lawyers make while during the submissions. Void contract can't be a void contract. If it's like a oxymoron. So it is either enforceable or it is not enforceable. So these are void agreements. These are not void contracts. Now, Section 2G of the Indian Contract Act refers to as void agreements, and it defines what void agreements are. And these agreements are not enforceable by law. And Section 2G is the source of all agreements that are referred to as void ab initio. Someone had said void ab initio. Who said that? अभी जो minority के example में किसने बोला था? हाँ, आप हमको समझा सकती है क्लास के लिए void ab initio का मतलब क्या है, ताकि सबके लिए क्लियर हो जाए। Void ab initio is something which is void from the beginning. So contract के term में देखें तो वो beginning से भी void है, वो कभी आया ही नहीं force से। Correct. आप next statement को पढ़िए। आप नहीं, मतलब क्लास को कह रहा हूँ, सेक्शन 2J को पढ़िए और अब बताइए कि सारे void agreements void ab initio होता है या क्या सीन चल रहा है? आपको क्वेश्चन समझ में आया क्लास को कि आर ऑल void agreements void ab initio? नहीं भैया, not नहीं all भैया। agreements are void ab initio. Section 2J talks about these kind of agreements that I'm referring to. Agreements which cease to be enforceable become void. कि ये पहले कॉन्ट्रैक्ट थे लेकिन कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो सब्सिक्वेंटली void हो गए, सब्सिक्वेंटली बिकम void. सो क्या आपको ये डिस्टिंक्शन समझ में आया सेक्शन 2G और सेक्शन 2J में, कि कुछ अग्रीमेंट्स पहले से ही void माने जाते हैं और कुछ अग्रीमेंट्स void बाद में हो जाते हैं? ठीक है, इसका एग्जांपल ये है, A agrees to pay a sum of rupees 10,000 after 5 years against a loan of rupees 8,000. तो 8,000 का लोन है, 2,000 रुपए उस पर इंटरेस्ट है, 5 साल के बाद उसको चुकाने हैं। ठीक है, फिर A dies of natural causes in 4 years. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी पीरियड के पहले ये मर गया। The contract is no longer valid and becomes void due to the non-enforceability of the agreed terms. तो ये सेक्शन 2G के अंदर void ab initio नहीं है, लेकिन सेक्शन 2J के अंदर ये सब्सिक्वेंटली void हो गया। कब void हुआ? 4 साल के बाद जब वो A मर गया, तब वो अग्रीमेंट अब एनफोर्स नहीं हो सकता क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी है ही। जो बंदा मर चुका है आप उससे लोन रिकवर कैसे कर सकते हो? आप लाइक लास्ट क्लास में हमारा ये डिस्कशन हुआ था, मैंने किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि फैमिली मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर से आप पैसे ले सकते हो नहीं ले सकते? इसका आंसर आपको ये मिल गया यहाँ पे, नहीं ले सकता। उसकी मृत्यु के बाद कॉन्ट्रैक्ट की भी मृत्यु हो जाती है। मुत्तकीफ ने हैंड रेज किया, पूछिए आप क्या पूछना। नहीं भैया, वही सेम क्वेश्चन था, पिछली क्लास में था नहीं, तो मैं वही पूछने वाला था कि उसका लीगल हायर जो होगा उससे क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो कुछ भी होता है वो तो फिर कंपनी अगर है तो कंपनी के थ्रू कर सकते हो अगर, क्योंकि कंपनी जो कॉमर्स वाले हैं उनको पता है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, पर ह्यूमन बीइंग्स आर रियल पीपल, राइट? सो यू कैन शिफ्ट द बर्डन ऑन टू द लीगल heirs. It is, you can't do that. But if it's a company, then it can continue to exist even if a particular promoter dies, because it is an artificial person. Then in that case, there are a few mechanisms like dissolution of the company,
which dissolution of the firm, in which you distribute a lot of assets and try to recover it. And usually this is a type of example where these are unsecured creditors. There is no collateral involved, and unsecured creditors are not offered that high of a position in dissolution also. Yes, Aisha, आप कुछ कहना चाहती हैं? भैया मैं प्रिंसिपल सॉल्व किया था जब लीगल का, तो उसमें यही सेम एग्जाम्पल था कि उसके पापा मर जाते हैं तब भी उसके बेटे से वो लोग जो बाकी का लोन था वो लोग उससे ले लिए थे। आंसर में यही सही लिखा हुआ था। तो Okay. वहां पे वो कैसे हो गया जब हम लोग फैमिली से नहीं ले सकते? वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो गारंटी होगा उस लोन का। जब कोई गारंटी नहीं होता आप नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट गारंटी और श्योरिटी इन चीजों में आता है कि कोई अगर एक लोन को गारंटी करता है तो उस केस में ये शायद हो सकता है कि आप रिकवर कर रहे हो। इसीलिए नहीं हुआ कि वो उसका बेटा था। फिर तो यार जो लोग सुसाइड क्यों करते हैं जब लोन चुका नहीं पाते? जैसे सीसीडी का अभी रिसेंटली सीईओ ने सुसाइड कर लिया था। कुछ इनकम टैक्स का इशू हो गया था और डेट चढ़ गया था, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। आपने पढ़ा होगा, 1-2 साल पुराना न्यूज है। तो अगर रिकवर कर रहे होते फैमिली मेंबर से तो क्यों करते लोग सुसाइड? क्योंकि बर्डन तो फैमिली पे आ जाएगा। पर ये तब होता था जब जमींदारी वाला सिस्टम था, जब बॉन्डेड लेबर कराते थे लोगों से कि आपके पिताजी ने लोन नहीं चुकाया तो आप हमारे यहाँ नौकरी करो। ये आजकल लीगल नहीं है। सूझबूझ आई लोगों के दिमाग में, बहुत ही अनकॉन्शनेबल है, जैसा हमने डिस्कस किया। तो नहीं हो सकता है। ठीक है आयशा, आपने समझ लिया ये? हाँ भैया। हाँ, तो this type of contract can't grant any rights or considerations to any of the involved parties. पिछले वाले चीज में voidable contracts में हमने ये देखा था कि कुछ राइट्स हैं जिसके ऑप्शन पे voidable है कि वो कह सकता है कि मेरे को इस अग्रीमेंट को वैलिड करवाना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। पर इस केस में दोनों पार्टीज के पास कोई राइट नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग है उस चीज से। कोई पार्टी इसको एनफोर्स नहीं करवा सकता है ना कोर्ट ऑफ लॉ। वैसे तो हो सकता है कि दो लोग अपने आप में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे हम देखेंगे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल होते हैं, वॉइड होता है क्योंकि वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कोई जैसे हमने फर्स्ट क्लास में सुपारी के बारे में डिस्कस किया था। पर इसका ये मतलब नहीं कि सुपारी होती ही नहीं है दुनिया में। इसका ये मतलब है कि सुपारी का अग्रीमेंट है, किसी ने किसी को मार दिया, जिसके डायरेक्शन पे जिसने मारा था उसने उसको पैसे नहीं दिए, तो वो आदमी कोर्ट के पास नहीं जा सकता कहने के लिए कि आप हमको पैसे दो, हमने मर्डर कर दिया, हम जेल जाएंगे लेकिन आप पैसे नहीं भरोगे। ये नहीं हो सकता। इसका एक और एग्जांपल, आप किसने सूट्स देखा है? यहाँ पे सूट्स जो टीवी शो है। यस भैया, देखा है। देखा है? और किसने देखा है? इसी चक्कर पे तो लोग आते हैं लॉ में कि सूट्स देख के भाई हम तो ऐसी बिल्डिंग्स में जाएंगे, हम तो ये कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी मेगल मार्केल हो जाएगी। पर नहीं होता ये सब, आप अभी से जान लो। तो फर्स्ट एपिसोड याद है आपको? एलसैट उसने लिखा था किसी के लिए। यस भैया। तो वो जब जाता है उस बंदी के रूम में, वो बंदा बोलता है कि मेरे को 175 चाहिए था। एलसैट का एग्जाम वैसे होता है 180 का। हार्वर्ड वगैरह में अगर आपको जाना है टॉप लॉ स्कूल्स में 170 प्लस आने चाहिए। तो उसने बोला था, और एवरेज स्कोर इज अबाउट 153 154। सो उसने बोला था कि 175 चाहिए। विद सीरीज सूट्स, यस सूट्स। सो उसने बोला कि मेरे को 175 चाहिए। पर जो बंदा था माइक रॉस, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो कहता है कि मैं बस 158 लेके आया। क्यों 158 लेके आया जबकि वो 180 भी ला सकता था? वो इसलिए लेके आया क्योंकि टेस्ट कंपनीज को पता लग जाता है कि किसकी क्या एबिलिटी है, कितना स्कोर करनी चाहिए। जो बंदा था
वो एक सब स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ता था, उसके ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे, एसएटी का जो स्कोर होता है वो भी कम था, तो वो ये इस बेसिस पे इन्फर कर लेते कि इसने चीटिंग करी है, तो वो इसलिए जानबूझ के उसने 158 का स्कोर लेके आया। तो उसने बोला चलो ठीक है, फिर आधे पैसे लो, आपने जितना स्कोर हमने अग्री किया था आप नहीं लेके आए तो आधे पैसे लो। तो फिर माइक क्रॉस कहता अरे हमने तो किया था कि बोला था आपने कि $2000 दोगे या जितना भी दोगे, पर उसने बोला कि नहीं, चल अब कोर्ट में जा। कोर्ट में जा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये इलीगल चीज है कि आप चीटिंग का अग्रीमेंट करवा रहे हो किसी से, आप फॉल्सली किसी के बिहाफ पे पेपर लिख रहे हो। जो लोग बिहार से है वो लोग समझ नहीं पाएंगे, अरे भैया ऐसा भी होता है, ये गैर कानूनी है क्या? तो ये था इस चीज का एक्सप्लेनेशन। तो जैसे हमने पढ़ा कि कौन से एग्रीमेंट्स वॉइडेबल होते हैं, कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाइलैटरल मिस्टेक, ठीक है, सेक्शन 20 के अंदर जो बाइलैटरल मिस्टेक होता है, बाइलैटरल का मतलब क्या होता है? बाइलैटरल सीरीज चल रही होती है, बाइलैटरल टॉक्स होते हैं, क्या होता है बाइलैटरल, बताइए, मुत्तकीब बताओ। भैया बायलैटरल मतलब फ्रॉम Two way, बोथ द two- साइड्स, मतलब दोनों both the पार्टीज sides, के पार्ट मिस्टेक है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा था बोथ पार्टीज, ये क्यों लाल किया था समझा आपने? ये जब मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना होता है तब, और जब एक पार्टी डिस्क्लोज करने में सक्षम नहीं होती है तब वो वॉइडेबल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज का ये सीन है तो वो वॉइड होता है। जैसे कि ए अग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, though neither party was aware of the fact, the agreement is void, क्योंकि दोनों पार्टीज को पता नहीं था। तो कंसेंसस एड आइडम जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था वो है ही नहीं इस केस में, ठीक है। तो ये बायलैटरल मिस्टेक जो कि सेक्शन 20 के अंदर डिफाइंड है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके केस में ये वॉइड होता है। एनी डाउट ऑन बायलैटरल मिस्टेक? भैया एक एग्जाम्पल सुना था मैंने जिसमें एक ट्रेडर जो होता है वो डील करता है गुड्स की जो उसकी शिप से आ रहे होते हैं, लेकिन शिप्स टॉर्नेडो में खो जाती हैं, और वो दोनों डील कर लेते हैं, तो ये भी बायलैटरल मिस्टेक होगी ना? वो उस चीज़ के बारे हाँ, में बात करें क्योंकि जो एग्जिस्ट ही एक नहीं करती। ये दो चीजों के ऊपर वॉइड है। एक तो टॉर्नेडो हो गया तो लाले उसके तो लाले पड़ गए होंगे उस लोगों के, उस कंसाइनमेंट के, वो समुंदर में बह गया होगा तो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरे इसमें ये है क्योंकि दोनों पार्टीज को ही पता नहीं था कि टॉर्नेडो हो जाएगा और ये होगा, तो ये आ सकता है, पर ये मिस्टेक नहीं है, ये मेनली सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रॉय होने से। एक्ट ऑफ गॉड, हाँ, ये फोर्स मेजॉर, एक्ट ऑफ गॉड, इन चीजों के अंडर भी आ जाएगा। तो ये मिस्टेक के ऊपर ये नहीं है, मिस्टेक में ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है यूजुअली, कि जैसे इस केस में हॉर्स मर चुका था, इस चीज के बारे में पता नहीं था उन लोगों को जब उन्होंने किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो टोर्नेडो के एग्जांपल में सब्सिक्वेंटली हो गया। जब उसने भेजा था तब तो नॉर्मल थे सीज, लेकिन जब उसके उस आदमी तक जब पहुंचे कंसाइनमेंट्स, तब तक डिस्ट्रॉय हो चुके थे टॉर्नेडो। तो सेकंड है agreements which have unlawful consideration and objects are void, and these are defined under section 23 and 24. The consideration or object of an agreement is unlawful if it is forbidden by law or of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, or is fraudulent, or involves injury to the person or property of another, or court regards it as immoral or opposed to public policy. ये बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसमें। फर्स्ट इन्वॉल्व है कि अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, कि अगर कोकेन जैसे है, कोकेन का आप सौदा करोगे तो नहीं है क्योंकि वो एनडीपीएस एक्ट के अंडर अनलॉफुल कर दिया गया है। वैसे अगर किसी कानून के प्रोविजंस को वो डिफीट कर दे तो भी वो वॉइड है।
जैसे अगर क्या बोलते हैं इसको, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक लिमिट होती है कि आप होर्डिंग नहीं कर सकते, आप जमाखोरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई जमाखोरी करता है तो वो उस प्रोविजन के को डिफीट कर देगा ये कॉन्ट्रैक्ट। जमाखोर जो होर्डिंग करके कोई प्राइस इन्फ्लेट करेगा अगर, तो वो भी वॉइड हो जाएगा। तो अगर ये कोई फ्रॉड्यूलेंट चीज होगा तो वो हो सकता है, वॉइड करवा सकते हैं उसको। इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ये भी क्योंकि ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप इसकी दुकान तोड़ दो, ये नहीं हो सकता, ये भी इलीगल है। और इमोरल और पब्लिक पॉलिसी, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल नहीं है पर रिलेटेड है। जैसे क्या बोलते हैं इसको, एक पेटेंट किसी को फाइल करना था, या ट्रेडमार्क पेटेंट किसी को फाइल करना था, किसी कुछ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट था उस चीज के ऊपर। तो फिर पेटेंट अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया कि ये इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो हम इसको पेटेंट ग्रांट नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी राज कुंद्रा साहब का केस हुआ है, वो भी इमोरल है। आप पोर्नोग्राफी को आप ऐसे सेल कर रहे हो, पोर्नोग्राफी का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं, कोर्ट इनको मानता नहीं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट्स we will be moving to Gmeet. Okay, I'll send you a Gmeet link if you have any doubts. I'll stop sharing my screen. भैया आप क्या प्लीज एक बार प्रेजेंट नंबर 6 में जा सकते हैं? एक मिनट, हाँ, मैं अभी ये एंड कर देता हूँ ताकि ये 45 मिनट्स का लिमिट होता है ना इस पे, तो ओके ओके।